Hello students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 10th Civics chapter 1st Power Sharing part 3rd. In this lecture video we will discuss about why power sharing is desirable. सत्ता की साझेदारी या सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है? Two different sets of reason can be given in favor of power sharing. सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflicts between social groups. पहला तर्क यह है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है. Since social conflict often leads to violence and political instability, political sharing is a good way to ensure the stability of political orders. चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए बहुत ही अच्छा है. Power sharing is a good way. Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run, it undermines the unity of the nation. बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी लोगों पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी हो सकता है, लेकिन आगे चलकर यह देश की एकता अखंडता के लिए घातक हो सकता है. Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. बहुसंख्यकों का आतंक या उत्पीड़न सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, बल्कि अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है. संघर्ष या टकराव कभी भी अच्छा नहीं होता. इसमें दोनों पक्षों की, चाहे आपकी विजय हो या पराजय, दोनों पक्षों की हानि होती ही है. There is a second deeper reason why power sharing is good for democracies. Power sharing is the very spirit of democracy. सत्ता के बंटवारे के पक्ष में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि पावर शेयरिंग लोकतंत्र की आत्मा है. सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects. People have a right to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens, through participation, acquire a stake in the system. लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें. इसीलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं. अर्थात अच्छा लोकतंत्र वही माना जाता है जिसमें उस पर्टिकुलर कंट्री के सभी सोशल ग्रुप्स को पार्टिसिपेशन प्राप्त हो, भागीदारी प्राप्त हो और सेम राइट्स, इक्वल राइट्स प्राप्त हो. Let us call the first set of reasons prudential and the second moral. While prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reasons emphasize the very act of power sharing as valuable. इन दोनों तर्कों में से
एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। प्रूडेंशियल का मतलब होता है कि किसी भी काम के हानि और लाभ का हिसाब लगाकर लिया गया फैसला। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। Anite studies in a Dutch medium school in the northern region of Belgium. Anite बेल्जियम के उत्तरी भाग में स्थित एक डच मीडियम के स्कूल में पढ़ती है। Many French speaking students in her school want the medium of instruction to be French. एनिते के जो क्लासमेट्स हैं वो फ्रेंच बोलने वाले हैं और वो चाहते हैं कि जो स्कूल में पढ़ाई का मीडियम है वो फ्रेंच हो। On the other hand, Selvi studies in a school in the northern region of Sri Lanka. इसके अलावा सेल्वी श्रीलंका के उत्तरी भाग में एक स्कूल है जहां पर वो पढ़ते हैं। All the students in her school are Tamil speaking and they want the medium of instruction to be Tamil. और इनमें से ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो तमिल बोलने वाले हैं और चाहते हैं कि पढ़ाई का माध्यम तमिल रखा जाए। If the parents of Anite and Selvi were to approach respective governments to realize the desire of the child, who is more likely to succeed and why? कौन सी सरकार एनिते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है? किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों? नाउ खलील डायलेमा, खलील की उलझन। As usual, Vikram was driving the motorbike under a vow of silence, and Betal was the pillion rider. जैसा कि हमेशा होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा हुआ था। As usual, बेताल started telling Vikram a story to keep him awake while driving. हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। This time the story went as follows. कहानी कुछ इस प्रकार थी। In the city of Beirut, there lived a man called Khalil. लेबनान के बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। His parents came from different communities. उसके माता पिता अलग अलग सामाजिक समूहों से आते थे। His father was an Orthodox Christian and mother a Sunni Muslim. उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माता सुन्नी मुसलमान थी। This was not so uncommon in the modern cosmopolitan city. आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात नहीं थी। People from various communities that lived in Lebanon came to live in its capital, Beirut. लेबनान के बेरूत शहर में विभिन्न कम्युनिटीज के लोग आकर रहा करते थे। They lived together, intermingled, yet fought a bitter civil war among themselves. वे सभी आपस में मिलजुल कर रहते थे, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। One of Khalil's uncle was killed in that war. खलील का चाचा भी एक ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। At the end of this civil war, गृह युद्ध की समाप्ति पर
Lebanon's leaders come together and agreed to some basic rules for power sharing among different communities. गृह युद्ध की समाप्ति पर सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। As per these rules, the country's president must belong to Maronite sect of Catholic Christian. इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि जो देश का राष्ट्रपति होगा वो मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक व्यक्ति होना चाहिए। The Prime Minister must be from सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी। जो प्रधानमंत्री होगा वो सुन्नी मुस्लिम समुदाय का होना चाहिए। The post of Deputy Prime Minister is fixed for Orthodox Christian sect. जो उप प्रधानमंत्री का पद होगा वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई के लिए जो है तय किया गया। एंड दैट ऑफ द स्पीकर फॉर सियाज मुस्लिम, और जो संसद का अध्यक्ष होगा स्पीकर होगा वो सिया मुस्लिम होना चाहिए। अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियन एग्रीड नॉट टू स्पीक फ्रेंच प्रोटेक्शन and the Muslim agreed not to seek unification with the neighboring state of Syria. और इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी देश सीरिया के साथ एकीकरण की मांग नहीं करेंगे। When the Christians and Muslims came to this agreement, they were nearly equal in population. जब मुसलमानों और ईसाइयों के मध्य समझौता हुआ तो उस टाइम दोनों की पॉपुलेशन लगभग बराबर थी। Both sides have continued to respect this agreement, though now the Muslims are in clear majority. बाद में मुस्लिम स्पष्ट बहुमत में आ गया, पर दोनों पक्ष आज भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। खलील does not like this system one bit. खलील इस समझौते को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। He is a popular man with political ambitions. वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है। But under the present system, the top position is out of his reach. लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद यानी प्रेसिडेंट के पद पर कभी नहीं पहुंच सकता। He does not practice either his father or his mother's religion and does not wish to be known by either. वह ना तो माँ के धर्म को मानता है और ना ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे कभी भी किसी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। He can't understand why Lebanon can't be like any other normal democracy. उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। Just hold an election, allow everyone to contest, and whoever wins maximum votes become the president, no matter which community he comes from. Why can't we do that like in other democracies of the world? He asks his elders who have seen the bloodshed of the civil war. Tell him that the present system is the best guarantee for peace. खलील का कहना है कि सिर्फ चुनाव कराइए और हर किसी को चुनाव में लड़ने की आज़ादी दीजिए। जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वही राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा उनका कहना है
कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड बट दे हैड रीच्ड द टीवी टावर वेयर दे स्टॉप्ड एवरी डे। कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन वे उस टीवी टावर के पास पहुंच चुके थे जहां वो प्रत्येक दिन रुकते थे। बेताल wrapped up quickly and paused his customary question to Vikram. If you had the power to rewrite the rules in Lebanon, what would you do? बेताल ने जल्दी से अपनी कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार दिया जाए तो आप क्या करते? Would you adopt the regular rules followed everywhere as Khalil suggests, or stick to old rules, or do something else? Betal didn't forget to remind Vikram of their basic pact. If you have an answer to mind and it do not speak up, your mobile will freeze, and so will you. बेताल ने पूछा, क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते, तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी, रुक जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इन आंसरिंग बेताल? क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? अगर आप विक्रम की जगह होते तो क्या आंसर देते? सोचिए और मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।